بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ معمول کی طرح مجھے جگانے کے لیے امی آج بھی آوازیں دے رہی تھیں، لیکن میں تو ان کے جگانے سے پہلے ہی جاگ گئی تھی۔ اب تو مجھے نیند نہیں آتی تھی، ساری رات سوچوں اور خوبصورت خیالوں میں گزر جاتی، یہی سوچتی رہتی کہ صبح کب ہو اور میں جلدی سے یونیورسٹی چلی جاؤں۔ پہلے کی طرح میرا معمول نہیں رہا تھا، ایک ہفتے میں میری 2 یا 3 چھٹیاں لازمی ہوتیں۔ امی کہتی تمہیں تو اپنی نیند عزیز ہے، کچھ خیال ہی نہیں اپنی پڑھائی کا۔ میں امی کی بات سنی انسنی کر دیتی۔ آج کل وقت پر اٹھنے اور روز یونیورسٹی جانے سے امی تو بہت خوش تھیں۔ میری ان خوشیوں کا مرکز شان تھا۔ شان میرا کلاس فیلو تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے کبھی کبھار بات کیا کرتا تھا، اب جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہوتی وہ مجھ سے حال چال ضرور پوچھتا۔ میں نے یہ بھی دیکھا وہ کافی دنوں سے میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا نظر آتا۔ یہ اتفاق تھا یا وہ جان بوجھ کر یہاں بیٹھتا تھا؟ خیر جو بھی تھا، انتہائی خوبصورت اور امیر ہونے کی وجہ سے لڑکیاں شان پر مرتی تھیں۔ میں تو خوش ہی اتنی تھی کہ وہ خود مجھے لفٹ کروا رہا ہے۔ جب وہ میری طرف منہ کر کے بات کرتا تو میں اپنے چاروں طرف گردن گھما کر دیکھتی کہ کیا وہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اتنا امیر اور خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر وہ میرے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا۔ خوبصورت تو میں بھی تھی مگر امیر نہیں تھی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا اور شان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے لگی۔ اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری زیادہ توجہ اسی بات پر ہوتی کہ شان کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی میں اسے نوٹس بنا کر دیتی، کبھی اس کے کوئی اور کام کر دیتی۔ میری سہیلیوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ شان تو باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی بات کرتا ہے، لیکن میں ان کی باتوں کو اگنور کر دیا کرتی اور کہتی کہ تم لوگ مجھ سے جلتی ہو کیونکہ شان تم لوگوں کو منہ نہیں لگاتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ شان کے خلاف کوئی غلط بات کہے۔ اب تو شان بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتا، میرے لیے ڈھیروں چیزیں آرڈر کر لیتا۔ میں دوسری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر اتراتی اور اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتی۔ مجھے نہیں معلوم یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی۔ شان مجھے مہنگے مہنگے تحفے لا کر دیتا، میں اسے سنبھال کر رکھتی اور اپنی سہیلیوں کو دکھاتی۔ اب تو میری سہیلیوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ میرے اور شان کے درمیان کچھ تو ہے۔ میری ڈگری ختم ہونے والی تھی، میں چاہتی تھی اپنے گھر والوں سے اس سلسلے میں بات کر لوں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے گھر والے انکار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ شان خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی تھا۔ میں نے ایک دو بار شان سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی، اس نے مجھے ہنس کر ٹال دیا کہ شادی بھی کر لیں گے، اتنی عمر پڑی ہے۔ میں نے اسے ابا سے ملنے کا کہا، وہ مان گیا، لیکن عین وقت پر اسے کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی، اس لیے وہ ابا سے مل نہیں سکا۔ ہماری یونیورسٹی میں اگلے ہفتے ایک فنکشن ہو رہا تھا، میں نے سوچا ابا کو وہاں ساتھ لے کر جاؤں گی، شان سے ملوا دوں گی۔ جس دن کا مجھے انتظار تھا وہ آ گیا۔ بڑی مشکلوں کے ساتھ ابا کو ساتھ آنے کے لیے راضی کیا اور میں ابا کو ساتھ لے کر شان سے ملوانے کے لیے آئی۔ شان ابا کو یکدم سامنے دیکھ کر پہلے تو گھبرایا، پھر گرم جوشی سے ابا کے ساتھ ملا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے ابا کو سب سچ بتا دیا۔ ابا نے کہا اس متعلق گھر چل کر بات کریں گے۔ گھر آتے ہی میں ابا کے جواب کا انتظار کرنے لگی، لیکن ابا نے رات تک کوئی بات نہیں کی۔ پھر میں نے خود ہی ہمت کر کے ابا سے اس متعلق بات کی۔ ابا نے کہا وہ لڑکا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، ویسے بھی وہ ہمارے معیار کے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ شان بھی مجھے پسند کرتا ہے، لیکن ابا ایک ہی بات پر بضد تھے کہ ہمیں اتنے امیر لوگوں میں شادی نہیں کرنی۔ میں غصے سے ابا کے کمرے سے نکل آئی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے سوچا ابھی جلدی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، 3-4 ماہ پڑے ہیں، تب تک ابا کو منا لوں گی۔ میں نے سوچا میں صبح شان سے شادی کے سلسلے میں بات کروں گی، اس سے کہوں گی کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو تاکہ بات آگے بڑھے۔ صبح میں یونیورسٹی گئی تو شان آج تک آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے فون کیا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں مزید پریشان ہو گئی، میرے پاس شان کے علاوہ اور کسی کا کانٹیکٹ نہیں تھا۔ میں ساری رات اس کا نمبر ملاتی رہی
लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। अचानक रात के 1 बजे शान की कॉल आई। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ वो बहुत मसरूफ़ लग रहा था। उसने मुझे बताया कि मेरा मोबाइल गुम हो गया था, सो तुमसे राब्ता नहीं हो सका। मैं भी बहुत उदास हो गया। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं थी जिसे देखकर गुजारा करता, इसलिए जल्दी से मुझे अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरें भेजो। मैं खुशी से निहाल हो गई कि शान मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैंने चादर तक नहीं ली हुई। मैंने चादर के बगैर ही अपनी तस्वीरें शान को भेज दी। उसका मैसेज आया कि बहुत प्यारी तस्वीरें हैं, अभी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी आकर मिलूंगा। मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। सुबह होते ही मैं जल्दी से तैयार हुई और जाते ही अपनी सहेलियों को रात वाले वाक़े के मुतालिक बताना चाहा। कुछ ने तो रश किया और कुछ ने कहा तुम दोबारा उसे तस्वीर मत भेजना। मुझे लगा ये मुझसे जलती है, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। शान आज यूनिवर्सिटी देर से आया। आते ही मुझे कैफे ले गया। उसने कहा मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे घर वाले देर से पहुँचने पर परेशान हो जाएंगे। बोला तुम फिक्र ना करो, यूनिवर्सिटी का वक्त खत्म होने से पहले तुम्हें घर पहुँचा दूंगा। मैं उसके साथ चलने को राजी हो गई। वो मुझे एक फ्लैट में ले आ गया। न जाने क्यों मुझे खौफ सा आने लगा। उसने मेरी हालत देखकर कहा डरो नहीं, यहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। पूरा फ्लैट फूलों से सजा हुआ था, हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। दीवारों पर मेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। मैं तो खुशी से निहाल हो गई। सामने दीवार पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था और एक प्यारा सा केक पड़ा था। आज मेरी बर्थडे थी और मुझे याद तक नहीं था शान ने किस तरह मेरी सालगिरह को याद रखा। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो रहा था। शान ने मेरे साथ मेरी सालगिरह का केक काटा और फिर हम वहां से वापस आ गए। रास्ते में वो मुझे एक रेस्टोरेंट ले गया, अच्छा सा खाना खिलाया। हमने ढेरों बातें की। मैंने कहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। वो कहने लगा इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है। मैं कल इसी वजह से मसरूफ था, यूनिवर्सिटी नहीं आया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि शान मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। उसने मुझे वक्त पर घर पहुंचा दिया। मैं बिला वजह डर रही थी। अब मेरा शान पर एतमाद बढ़ने लगा। हम यूनिवर्सिटी से बाहर भी मिलने लगे और मैं उसके साथ अब कहीं भी चली जाती। उसने आज तक मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा था। मेरी क्लास फेलोज मुझे समझाती कि शान अच्छा लड़का नहीं है, उसके ताल्लुकात और भी लड़कियों के साथ हैं, लेकिन मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी। एक दिन मैंने अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग कर रही थी जब शान को एक लड़की के साथ शॉपिंग मॉल से बाहर निकलते हुए देखा। मैं भागती हुई जैसे ही बाहर आई, वो दोनों जा चुके थे। मैंने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आने लगे। मैं सारी रात फ़ोन मिलाती रही। आखिर शान की खुद ही कॉल आ गई। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की, शान ने मुझसे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे पूछूं। आखिर मैंने कहा कि वो लड़की कौन थी। कहने लगा अरे वो तो मेरी कजिन है, दरअसल बैरून मुल्क से आई है ना, तो उसे शॉपिंग करवाने लाया था। मगर मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। मेरे दिल में अब अजीब से वसवसे पड़ रहे थे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर शान मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रख रहा था, मुझे महंगे महंगे तोहफे लाकर देता। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते के लिए छुट्टियां हो गईं। मैं बहुत उदास थी कि उसके बिना वक्त कैसे कटेगा। शान ने मुझे तसल्ली दी और कहा हम रोज रात को वीडियो कॉल करेंगे, तुम कहती हो तो तुम्हें मिलने भी आ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे घर नहीं आना। वो हंसने लग पड़ा। मैं शान को जैसे ही घर वालों से रिश्ते की बात करने का कह दी, वो हमेशा मुझे कहता तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें जरूर मना लूंगा और शादी तुमसे ही करूंगा। यूनिवर्सिटी की छुट्टियों के दौरान मुझ तक खबर पहुंची कि शान की मंगनी हो गई है। ये खबर मेरे दिल पर पत्थर की तरह लगी। मैंने शान को फोन करना मुनासिब नहीं समझा। मैं किसी क्लास फेलो से शान के घर का पता लेकर वहां पहुंची। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, वो बाहर लॉन में एक लड़की के साथ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। ये वही लड़की थी जिसे उसने अपनी कजिन बताया था। शान ने जैसे ही मुझे देखा वो जरा भी नहीं घबराया। वो मुझे अपनी कजिन से मिलवाने के लिए ले गया। उसने मेरा तारुफ एक क्लास फेलो की हैसियत से करवाया। मैंने शान को चुपके से कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा मैं 2 मिनट में आता हूँ। वो घर बताकर मुझे बाहर ले आया। कहने लगा जनाब कोई बात थी तो फोन पर कर लेती या मुझे बुला लिया होता,
यहाँ आने की जहमत क्यों की? मैंने बराह रास्त शान से पूछा। क्या तुमने मंगनी कर ली? वो हमेशा की तरह हंसने लगा। ठीक सुना है तुमने, वो तो बस एक दिखावा है। अगर ये मंगनी ना करता तो मुझे जायदाद से आग कर दिया जाता। एक बार मुझे बाबा की दौलत हासिल कर लेने दो, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने कहा, शान, मुझे दौलत की जरूरत नहीं, बस तुम मेरे हो जाओ। अरे भाई, जिंदगी गुजारने के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे ना, शान ने कहा। मैं राजी हो गई। शान ठीक कह रहा था, अकेले मोहब्बत से तो जिंदगी नहीं गुजरती। अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा था। मेरा जाने को दिल तो नहीं था, लेकिन शान के इसरार पर मैं मान गई। यूनिवर्सिटी ने इजाजत दी थी कि आप लोग अगर हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो खुद भी जा सकते हैं, और फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जाने की इजाजत थी। शान ने मुझे कहा कि हम दोनों अपनी गाड़ी में जाएंगे, साथ साथ बातें करते जाएंगे। इस तरह हमारा सफर भी इकट्ठे गुजरेगा। मैंने यही मुनासिब समझा, क्योंकि शान से दोस्ती होने के बाद मेरी और किसी से इतनी दोस्ती नहीं रही थी। टूर 2 दिन का था। मैंने घर से इजाजत ले ली, मगर घर में ये नहीं बताया कि शान के साथ जा रही हूँ, वरना मुझे जाने की इजाजत ना मिलती। मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली। जिस दिन टूर जाना था, बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी यूनिवर्सिटी चली गई। वहां से मुझे शान के साथ इकट्ठे जाना था। थोड़ी देर के बाद वो आ गया। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। सारा रास्ता हमने खूब बातें की। मुझे पहले कभी इतना मजा नहीं आया, लेकिन सफर में शान का साथ होने की वजह से हमने बहुत एंजॉय किया। खाने पीने के लिए चीजें खरीदी। शान मुझे एक गाड़ी में बिठाकर चीजें खरीदने चला गया। मैंने शान से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रास्ते में गाड़ी रोककर तुमने मुझे यहाँ क्यों बिठा दिया है? लेकिन शान ने मुझे मना कर दिया। कहने लगा, तुम अंदर ही रहो, यहाँ अजीब तरह के लोग होते हैं। मैं नहीं चाहता कोई तुम पर बुरी नजर डाले। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो काफी देर के बाद आया। मैंने कहा, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? कहने लगा, वहाँ बहुत रश था, इसलिए देर हो गई। रात के 8 बजे हम वहाँ पहुंचे। बाकी स्टूडेंट की निस्बत शान ने कमरों में बुकिंग अलग अलग रेस्टोरेंट में करवाई थी। मुझसे कहने लगा, मैं नहीं चाहता कोई हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करे। शान ने 2 कमरे बुक करवाए, एक मेरे लिए, एक अपने लिए। सुबह के वक्त सारे स्टूडेंट्स ने सैर के लिए निकलना था, सो सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गई और अकेली बोर हो रही थी कि थोड़ी ही देर में शान की कॉल आ गई। बोला कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो मुनासिब समझो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, फिर सोने के लिए अपने कमरे में चली जाना। मैं उठकर उसके कमरे में चली गई। उसने टीवी पर मूवी लगाई हुई थी। हम दोनों साथ मिलकर मूवी देखने लगे। शान ने चाय भी मंगवाई और साथ ही कुछ लवाजमात भी थे। मूवी देखते देखते न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब शान ने मेरा कांधा हिलाया। बोला, तुम थकी हुई हो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं शर्मिंदा से वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। सुबह होते ही मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर शान खड़ा था, मुझे नाश्ते के लिए बुला रहा था। मैं जल्दी से तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आ गई। हमने बाहर बैठकर नाश्ता किया। तब तक हमारी टीचर्स की कॉल आ गई, सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं, हम इकट्ठे ही यहाँ से निकलेंगे। मैं और शान फौरन वहां पहुंच गए। हमने शुमाली इलाका जात को पहली बार देखा। इतना हुस्न देखकर मैं दंग रह गई। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी। हमने खूब एंजॉय किया। सुबह के निकले थे, अब शाम होने को आई थी। सब लोगों ने वापसी का सफर इख्तियार किया। सभी लोग तकरीबन थके हुए थे, इसलिए सब ने यही बेहतर समझा कि रात यहाँ गुजारने की बजाय घरों के लिए निकल जाएं। मैं भी बहुत थक चुकी थी। जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट पहुंचे, मैं वॉशरूम चली गई। नहा धोकर जैसे ही बाहर आई तो शान की कॉल आ रही थी। कल की तरह उसने मुझे कहा कि अगर थकी नहीं हो तो यहाँ आ जाओ, चाय पीते हैं। मुझे भी चाय की तलब हो रही थी। मैं अपने बाल समेटती उसके कमरे में आ गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, उसने चाय और लवाजमात पहले ही मंगवा कर रखे हुए थे। मैंने फटाफट चाय उठाई और पीने लगी। चाय पीते ही मेरा सर चकराना शुरू हो गया। मुझे लगा शायद थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है। अगले चंद मिनट के अंदर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो रात के 10 बज रहे थे। मैं उसके कमरे में थी और वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने उठना चाहा, लेकिन थकावट से जिस्म टूट रहा था। मैं खुद को घसीटती हुई दरवाजे तक ले आई। दरवाजा खुला था। मैं फौरन अपने कमरे में गई। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने शान का नंबर मिलाया, वो बंद जा रहा था। मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गई।
वहाँ से उसका पूछा तो पता चला कि वो 1 घंटा पहले ही यहाँ से निकल चुका है। मैंने जल्दी से अपनी दोस्तों का नंबर मिलाया। वो लोग तो 8 बजे ही यहाँ से जा चुके थे। अब मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं। शान के नंबर से जो मैसेज मुझे मौसूल हुए, काश वो देखने से पहले मैं मर जाती। उस गलीज शख्स ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। 4 माह तक वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा, जी भरकर अपना एतमाद दिलवाया और मौका मिलते ही फरार हो गया। शान ने मुझे कुछ नाजेबा तस्वीर दिखाई, जिसमें यूं लग रहा था जैसे इस घटिया काम में मैं उसके साथ बराबर की शरीक हूँ। उसने कहा कि अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हारी ये तस्वीर सबको दिखा दूंगा। मैंने सोचा मैं पुलिस से मदद मांगती हूँ, लेकिन वो तस्वीरें अगर शान ने पुलिस को दिखा दी तो पुलिस तो मेरा भी एतबार नहीं करेगी। समझ में कुछ न आ रहा था। ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। काश उसी दिन अपने बाप की बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब रोने से क्या हासिल होना था। मैं उस घटिया इंसान को सबक सिखाना चाहती थी। मैंने सोचा किचन में कैमरे लगे हुए हैं, शायद मुझे उनसे कुछ मदद मिल जाए। मैंने रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाकर उसे सब बता दिया। मैंने उससे मदद तलब की, लेकिन उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। मेरी उंगलियों में गोल्ड की रिंग और कानों में गोल्ड के टॉप्स थे। मैंने वो उतार कर उसे दे दिए और मिन्नत समाजत की कि मेरी मदद करो। थोड़ी सी तगो-दो के बाद वो मान गया। उसके कमरे में मौजूद किचन के कमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसने अपनी पॉकेट से सफूफ निकालकर एक कप में डाला था। वो अपनी चाय वहां से उठाकर ले आया था और सफूफ वाला कप वहीं रहने दिया। जब मैं उसके कमरे में गई, उसने वही कप मुझे लेने के लिए भेजा था। वही चाय पीकर मेरी हालत गैर हो गई और इसी बेहोशी के आलम में उसने मेरा फायदा उठाया। मैंने वो वीडियो वहां से हासिल की, किसी न किसी तरह घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही मैंने अपने एक दोस्त की मदद से साइबर क्राइम वालों से राब्ता किया। पुलिस के पास जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे यकीन था ये वहां से रिहा हो जाएगा, मेरी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। साइबर क्राइम वालों को मैंने कमरे की वीडियो दिखाई, सारी सूरत हाल से आगाह किया। इन्होंने शान के नंबर से उसे ट्रेस किया, अपनी तहवील में ले लिया। अदालत में मुकदमा चला और उसे उम्र कैद हो गई। मैं लड़कियों से यही कहूंगी कि अगर ऐसा कोई भी मसला पेश आए तो हिम्मत से काम लें। अगर आप डरेंगी तो डराने वाला आपको और डराएगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।